Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you economics. So, students, today we are here to see Standard 12th Economics, chapter number 5, Poverty. As you all know, we have already seen few portions of this chapter. So today we are here to see the part 6 of the chapter. So students, before moving to the today's current topic, as usual, let us have a short discussion about the revision of the previous portion that we have seen. So previously we have seen about the indicators of the poverty in a detailed manner. In that we have covered up 4 points in a very detailed manner, in which the first one is the medical facility. You know that the health sector is an important sector, in that many types of professional shifts are being seen of doctor, compounder and nurse and many portions. But we have scarcity in India very much regarding such health facilities. Even it has been seen that comparatively to the developing economy and developed economic, 6,000 people are getting one doctor in developing economic, whereas in the developed country for 350 people they are getting one doctor majorly for 350 people. Rather than that, we have seen that approximately 1.7 crore people are dying due to malaria, diarrhea and TB in the developing countries. And if you consider the AIDS, in that we have seen that 2.5 crore people probably are covered up under the AIDS diseases, which is very critical. But among them, all over the world, 90% people are from the developing economic. So this was the medical facilities. After that, we have seen of the provision of toilet in a very detailed manner. So if you consider provision of toilet, you know that there are many movies made up on this topic, and relevantly this is a topic which is discussed in a very more manner. So why toilets are necessary? You know that contagious diseases and cleanliness should be needed to remove such diseases. More than 70% people are living in rural area, which means the village, and there are approximately only overall from 100% only 66% people are having toilet, remaining 34% are not having that portion, due to which contagious diseases and many more diseases are affecting such people. That's why it is needed to provide the toilets must be provided in each and every house in the villages. So such thing is included in the indicator. After that, we have seen the drinking water. Even this is an important factor. If you're considering drinking water, you know that our body is made of 70% of water, so we need water so much. So if we don't get a pure drinking water, it also leads us to a contagious diseases or waterborne diseases by the contaminated water. So here also we have seen that probably 63.3% people are getting the pure drinking water, 8% are getting the tapped water, and rather than that, remaining 23% are getting the water from the well, pond and spring, rivers, which means which are very adverse for the health. Such type of waters are also got by 23%, which means this is also a severe indicator seen in the poverty. After that, we have seen the electricity. What is electricity? If you are considering electricity, you know that electricity is needed more to develop a country in the level of production, and many more standard of living facilities needs the electricity. But still India is a consumer and a producer of electricity. Then also India is not able to get per person consumption more. It is very less comparative to other states or other countries or world, we can say that. After that, we have seen the housing facility. Still India is very lacking back with the housing facility. You know that it is a primary need for any individual. So in that also we have seen that India is lacking back 60 crore people among the old population in India. 60 crore people are living their risk in such a house and dwelling that they are not able to get a proper house. And according to that, we have seen that people still live in dirt and slum area. Rather than that, we have discussed it in the housing topic that even still that
type of house and full house facilities that is needed by the people according to the portion of research is not got by the people in India majorly, and people are living in one room also in India. So such topics we have discussed in a very detailed manner on the previous portion. So without wasting the time, now let us move on with the today's portion in a very brief manner from the PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's topic. Today we are going to see about the education in a very detailed manner. Last time we have seen up to the electricity consumption. So let us move on with the education. I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. According to the World Bank, people in the age group of 15 years and above who can read and write are literate. The rest are illiterate, they are mostly poor. Lack of education and training gives rise to incapable and less productive laborers in the country. As a result, laborers get limited work opportunity and choice. Hence, less wages and low income increases poverty in 2011. Brazil had 91% literacy rate, whereas in India, it was 74.04%, in Nepal 60% and 55% in Pakistan, which shows that in developing country, the literacy rate is comparatively very less. Low education among poor makes them conservative and less acceptable to change. High rate of ignorance is a strong indicator of poverty. तो अगर हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करते, कोई भी इंसान अगर ग्रुप ऑफ 5 इयर्स 15 इयर्स के नीचे है और अबव है 15 इयर्स के अबव यानी 15 साल के ऊपर का है, और अगर वो लिखना पढ़ना जानता है, इफ ही कैन रीड एंड राइट बाय हिज ओन, देन ही इज कंसिडर्ड एज लिटरेट. और 15 साल के बाद अगर उसे लिखना पढ़ना भी ना आता हो तो इसका मतलब वो इलिटरेट यानी अभण जो गुजराती में बोलते हैं, अनपढ़ जो हिंदी में कहते हैं, वो माना जाता है. इसका मतलब वो गरीब है, वरना 15 साल तक की पढ़ाई तो उसको करनी ही चाहिए. लैक ऑफ एजुकेशन, अगर हमें जितना एजुकेशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, इसका मतलब हमारी आवड़त जो हम बोलते हैं कैपेबिलिटीज वो बहुत ही कम हो जाती है और हम बहुत लेस प्रोडक्टिव लेबर माने जाते हैं. हमारा जितना एफिशिएंसी होती है उस एफिशिएंसी से हम काम नहीं कर पाते कोई भी कंट्री के अंदर. एज अ रिजल्ट क्या होता है, पॉवर्टी इंक्रीज होता जाता है. रेदर देन दैट, एज अ रिजल्ट लेबर्स को बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलता है. जैसे आप सिर्फ 10th पास हो, आपको कितने जॉब मिलेंगे, क्या जॉब मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी? नो, यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर जॉब अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड अपॉर्चुनिटी एंड योर चॉइस. यू विल नॉट गेट, तुम्हें जो मिलता है उसमें जॉब करना पड़ेगा, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. इसलिए लेस वेज और लो इनकम जो है पॉवर्टी को इंक्रीज करेगा. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको जो जॉब करना है वो जॉब तो आपको मिलेगा नहीं, फिर जो जॉब मिलेगा वो करना पड़ेगा, उसमें जो सैलरी दिया जाएगा उस सैलरी में करना पड़ेगा, सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं होगा. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉवर्टी बढ़ता जाता है. 2011 में ब्राज़ील में ये देखा गया कि 90% लिटरेसी रेट देखा गया था, यानी ब्राज़ील में 91% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि इंडिया में वो सिर्फ 74.0% यानी 30% लोग अभी भी इंडिया में पढ़े लिखे नहीं है, जबकि नेपाल में सिर्फ 60%, पाकिस्तान में स्टिल 55% ही देखा जाता है. तो ये सारी डिटेल्स डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखा जाता है. और इवन ये बोल सकते हैं कंपैरेटिवली जहाँ पे लोगों को एजुकेशन हाई मिलता है वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है और गवर्नमेंट भी इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है. तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव टू अदर पोर्शंस, जैसे नेपाल और पाकिस्तान को छोड़ो, बट ब्राज़ील के कंपैरिजन में हमारा बहुत ही कम है. लो एजुकेशन कहीं ना कहीं लोगों को पुअर बनाता है. सोच उनकी बंधी हुई होती है, कंजर्वेटिव सोच होती है. जैसे आज भी कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो ये मानते हैं कि ये काम इनको नहीं करना चाहिए, वो काम इनको नहीं करना चाहिए. कंजर्वेटिव यानी पुराना तौर तरीके का कहीं ना कहीं बंधा हुआ सोच जो माना पड़ता है, और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते. चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं हमारे टाइम पे ऐसे ही था, हम ऐसे ही रहते, हमको ये सब चीज़ें अच्छा लगता है. इस तरीके की बातें यही लोग करते जो पढ़े लिखे नहीं होते. इधर आप पढ़े लिखे, आपको पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी नया नया चेंज होता है, उस हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है. तो हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस अच्छी चीज़ों को कौन ज़्यादा देता है, इसका मतलब हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इलिटरेट पीपल के यहाँ देखा जाता है. तो इलिटरेट पीपल कहीं ना कहीं पॉवर्टी की ओर बढ़ाते हुए नजर
आता है। वन लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम कैन नॉट गिव द राइट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अ कंट्री विथ हाई पर कैपिटा इनकम कैन हैव हाई नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर हम ये बोले कि पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, इसका मतलब यहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, तो वो गलत हो सकता है। जो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम है वो कभी भी कोई भी कंट्री का पॉवर्टी को नहीं बताता। इवन ये देखा जाता है कि कंट्री का जो पॉवर्टी होता है, अगर वहाँ पे हायर पर कैपिटा इनकम देखा गया हो तो उसका मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे भी देखे जा सकते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब ये नहीं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गया मतलब पॉवर्टी हट गया। पॉवर्टी तो पर कैपिटा इनकम से भी अलग टॉपिक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है एजुकेशन की। सो यहाँ पे एजुकेशन में हमने ये देखा कि एजुकेशन ना मिलने की वजह से लोगों की सोच बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ता है बट पॉवर्टी खत्म नहीं होता है, पॉवर्टी भी वहां पे बढ़ता जाता है। इस तरीके से हमने देखा। सो नाउ लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड poverty in a very detailed manner. I'm going to read it out, listen it out carefully. After 1991, economic reforms, economic growth and per capita income have increased sharply in India. But due to unequal distribution of income, larger reduction in poverty is noticed. With the increase in income inequality on one hand, which see rich class of people with high standard of living and enjoying good facilities, and on the other hand, we find low income people living in slums and deprived of basic necessities like food, education and health. The table below shows the actual income of the top 1% rich class in USA, UK and India. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी, ये तो बहुत बड़ा इशू की तरीके से देखा जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इनकम का देखा जाता है सबका इक्वल नहीं होता। इवन रिलेटिव पॉवर्टी में भी हमने यही देखा, किसी का 30,000 है तो किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है तो किसी का 10 लाख के अबाव भी है। तो इनकम और प्रॉपर्टी यानी पैसे, जिसके पास घर होता है वो 6-6 7-7 रखता है, जिसके पास एक भी नहीं होता है वो एक भी नहीं रखता। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी की भी बात करो या इनकम की भी बात करो, दोनों ही बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नजर आता है। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखा गया था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए शार्पली इंडिया ने बहुत काम किया। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए और पर कैपिटा इंक्रीज होना चाहिए, बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ बहुत काम किया गया। बट उस वजह से क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में देखा गया और इस वजह से लार्जर रिडक्शन पॉवर्टी में भी नोटिस नहीं किया गया। जैसे हमने सोचा पर कैपिटा इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में देखा गया और कुछ लोग इतने अमीर बन गए जिसकी कोई बात नहीं और कुछ लोग इतने गरीब बन गए, यानी पॉवर्टी की लार्जर रिडक्शन जो होप किया जा रहा था, सोचा जा रहा था, वो हो नहीं पाया। और इंक्रीज ऑफ इनकम इनइक्वलिटी की वजह से एक हाथ में जो अच्छे खासे पैसे वाले थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जा रही थी और वो और अच्छी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे थे, और दूसरे हाथ में जो लोगों की इनकम कम थी, जिनकी इनकम बहुत ही कम लेवल में देखी जा रही थी, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी की बात करते हैं, बेसिक नेसेसिटी यानी फूड, एजुकेशन, हेल्थ, वो नीड भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं नीचे एक टेबल दिया गया है जो एक्चुअल इनकम जो टॉप 1 क्लास, रिच क्लास, यूएसए, यूके और इंडिया में देखा जाता है, ये तीनों का कंपैरेटिवली नीचे एक टेबल दिया गया। सो लेट अस सी दैट टेबल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। टेबल नंबर 5.8 शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ टॉप 1% रिच क्लास। ठीक है, ये जो टेबल है ये नेशनल इनकम रिच क्लास जो 1% देते हैं उसके ऊपर देखा गया है। यूएसए 15.2, ईयर 2012 18.9, यूके 12.5 in the year 1998, 12.7 in 2012, India 9.0 in 1998, year 2012 इट इज 12.6। तो यहाँ पे टेबल से देखा गया है 1998 में यूके में जो नेशनल इनकम में रिच क्लास, जो सिर्फ 1% रिच क्लास का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो 15% देखा गया था। वही 2012 में सिर्फ 3% बढ़ा है 18%, जबकि यूके में वो 12.5% था जो बढ़ के 12.7 यानी डेसिमल में 0.7 यानी 2% बढ़ता नजर आया। जबकि इंडिया में जो 9% था वो एकदम से बढ़ के 12 में आ गया, यानी
परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया और ये 3 to 4% का देखा गया। ये इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 16 में देखा गया है। सो 9 यानी 5 मैंने इसीलिए बोला, 10, 11, 12 एंड 4 पॉइंट डेसिमल में 4, तो 4% का इंक्रीमेंट देखा गया। तो अब नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया, लेट अस रीड दैट एंड नो दैट इन अ वेरी वेल मैनर। According to the above information, in comparison to 1998, in the year 2012, the top 1% rich class share in actual rent income has increased. In comparison to 1998, in the year 2012, actual national income of top 1% rich class in USA has increased from 15.2 to 18.9, UK 12.5 to 12.7, and in India 9.0 to 12.6. For India, it can be said that the advantage from economic reform was more favored to of the rich. So the disparity of income inequality is also one of the indicator of existing पॉवर्टी। तो ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंपैरिजन से हमें ये पता चलता है, हम 2 साल की कंपैरिजन कर सकते हैं, 1998 और 2012 और 1998 में कितना 14 इयर्स का डिफरेंस देखा जाता है। करीबन इस 14 इयर्स के अंदर अगर आप देखो तो 1 क्लास पर्सन यानी 1% रिच क्लास का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो 14 साल के अंदर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। उस कंपैरिजन को हमने इस टेबल में देखा। अगर हम यूएसए की बात करते तो वो 15.2% से लेके 18.9, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15 में से 16 ले लेते, 16, 17, 18 एंड 3.6% तक का इंक्रीमेंट देखा गया है। वही अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ डेसिमल 0.2% का इंक्रीमेंट देखा गया, बट इंडिया में वो 9 से 12% तक देखा गया। तो हम इंडिया के लिए ये बोल सकते हैं ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किया गया था उसका सबसे ज्यादा फेवर या बेनिफिट किसको हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास पीपल को हुआ। इस वजह से कहीं ना कहीं इनकम में इनइक्वालिटी देखा गया और उस वजह से जो एग्जिस्टिंग पॉवर्टी है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंडिकेटर की तरह कंसिडर किया जा सकता है। यानी अभी जो गरीबी प्रिवेल कर रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो शेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखा गया ये भी इसका एक रीजन हम मान सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। When people with working capacity and willingness to work at existing wage rate do not find work, they are said to be unemployed. Low economic development and jobless growth after 1991 resulted in less development of economic opportunity. In comparison to increase in supply of labor is the main reason of increase in unemployment. In situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill basic need of his family. As a result, level of poverty remains high. In India till 2011, the rate of unemployment remained around 9%. According to the Labour Commission in the year 2013 and 14, the rate of unemployment among people 15 years and above is 4.9%. In rural area, this rate was 4.7% and in urban area, it was 5.5%. तो यहाँ पे ये देखा गया हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी जॉब ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं जो है लोगों की गरीबी को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी है, मैं काम कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी है वर्क करना, मैं काम करना चाहती भी हूँ, और अभी जो रेट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी दिन का 200 रुपीज 350 का वेजेस मिलता है, उस वेज रेट में भी मैं काम करने तैयार हूँ, फिर भी अगर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं अनएम्प्लॉयड मानी जाऊंगी। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ के बाद ही देखा गया। कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब देखा गया, जब लोगों को जॉब ना मिल रहा तब से देखा गया। 1991 के बाद अगर आप देखो तो ये रिजल्ट लेस डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में देखा गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये देखा गया कि लोगों को जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद उतना उनको नहीं मिला। इस वजह से इकोनॉमिक बहुत ही लेस डेवलप होता हुआ नजर आया। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर देखा गया, लेबर्स का सप्लाई तो देखा गया बट उनका जो मेन रीजन है
एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं मिला। अगर आपको चीजें मिल रही है, अगर आपके पास खरीदने के पैसे नहीं हो तो आप क्या करोगे? उसी तरीके से लेबर तो बढ़ रहे थे बट उतना वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ता गया। ये जो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट, इस वजह से लोगों को लैक ऑफ इनकम, यानी लोगों को जितना इनकम मिलना चाहिए उतना इनकम नहीं मिलता, और लोगों को अपनी फुलफिलमेंट, जैसे हम कमाएंगे ही नहीं तो हमारी नीड्स हम कैसे फुलफिल करेंगे? हमें जो चीजें चाहिए वो चीजें हम कैसे फुलफिल करेंगे? इज दैट पॉसिबल? नो, हम वो चीजें फुलफिल नहीं कर सकते। उसी तरीके से विदाउट जॉब पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर फैमिलीज बेसिक नीड, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? लेवल ऑफ पॉवर्टी बढ़ता गया और धीरे धीरे इंडिया के अंदर लेवल ऑफ पॉवर्टी ज्यादा होता हुआ नजर आया। इंडिया की अगर हम बात करते हैं टिल 2011 रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, कितने लोगों को जॉब नहीं मिला? ओवरऑल 100% में से सिर्फ 9% लोगों को जॉब नहीं मिला था। बट लेबर कमीशन के हिसाब से इन द ईयर 2013 टू 14 की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग ये 15 ईयर्स के अबाव इज 4.9%। जो 9% में देखा गया था उसमें से अभी जो है अब ये बोल सकते हैं कि अबाउ 15 ईयर्स में और 4.5% बढ़ने लगा। 15 ईयर्स के अबाउ जो लोग हैं यानी 15 साल से ऊपर जो है वैसे लोग में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं तो 4.9 यानी 5% देखा गया। रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं यही रेट 4.7% देखा गया और अर्बन एरिया में 5.5% देखा गया। इन शॉर्ट ओवरऑल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 9% है। उस 9% में अगर हम कंसिडर करते हैं 15 साल के ऊपर कितने लोग हैं तो 15 साल के ऊपर के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो वो 4.9% है, और वही अगर यही 9% को हम रूरल और अर्बन में डिवाइड करते हैं तो 4.7% एंड 5.5% में देखा गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉवर्टी बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। यहाँ पे खत्म होता है इंडिकेटर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बिफोर एंडिंग द पोर्शन, लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन ऑफ द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन इन अ वेरी समराइजेशन मैनर, मीन्स एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। सो लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टुडेज पोर्शन. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen the remaining indicators of the poverty. We have completed the topic. I hope you all have understood the portion in a very well manner. So now let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So today we have seen about the topic started from education. एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन कहीं ना कहीं लोगों को स्किल्ड और एफिशिएंट बनाता है। बट इंडिया के अंदर ये सिचुएशन देखा गया है कि जितना एजुकेशन और स्किल्ड लेबर्स जो प्रोड्यूस होने चाहिए, जितना यहाँ पे सप्लाई ऑफ पॉपुलेशन देखा जाता है, उस हिसाब से इंडिया में वो स्किल्ड लेबर्स और पॉपुलेशन देखे नहीं जाते इन एजुकेटिव मैनर। 15 साल के ऊपर जो भी इंसान लिखना या पढ़ना जानता हो उसे हम लिटरेट बोलते हैं, और अगर वही 15 साल के बाद अगर वो लिखना पढ़ना नहीं चाहता है तो उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट ओनली 70% ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड, स्टिल 30% आर illiterate people in the India. Rather than that, in Brazil in 2011 it was been seen up कि 91% people were educated. Even it shows that when someone is very educated, the thought procedure of him becomes little open-minded. But जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव हो जाते हैं और वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती है, तो उससे भी उनको जो जॉब चाहिए उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के लिए इंक्रीज करता है, जैसे कि हमने देखा। सो एजुकेशन के बाद नेक्स्ट हमने देखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सर्वे किया गया था कि 1998 में और रेदर देन दैट 2012 में, ये दोनों ईयर को कंपैरेटिवली हमें एक टेबल दिया गया था जिसमें कंपैरिजन में ये बताया गया
सिर्फ और सिर्फ 1%, अगर 1% रिच पीपल भी अगर अपना जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है उसकी कैलकुलेट करे तो जो है यूएस पे वो 15.2 देखा गया था, जो कि बढ़ के 18.9 बढ़ गया था, और वही यूके में 15.2 था जो 15.7 हो गया। इंडिया में जो 9 था वो बढ़ के 12.6 2012 में देखा गया, 1998 से 14 ईयर्स के गैप में। जब ये अमेंडमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में देखा गया था, उसके बाद प्रोबेबली इंडिया का ये कंसंट्रेशन था इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ लोगों की पर कैपिटा इंक्रीज किया जाए और उसके साथ पॉवर्टी में रिडक्शन होगा, ये होप के साथ पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था। बट अनसक्सेसफुली क्या हुआ, पॉवर्टी रिडक्ट नहीं हुआ, जबकि जो रिच थे वो और रिच हो गए और जो लोअर में थे यानी जो पुअर थे वो और पुअर हो गए, और पॉवर्टी में बहुत बड़ा एक हाईएस्ट बूस्टअप यानी बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ता हुआ नजर आ गया था। तो ये बोल सकते हैं कि 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म ज्यादातर 90% फेवर उसने रिच लोगों को दिया, जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी थी वो बेस्ट हो गई और जिनकी कम थी वो और कम हो गई। इस तरीके से ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैरिटी है ये भी एक इंडिकेटर है जो पॉवर्टी को ज्यादा बूस्टअप करता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जितना लोग पढ़ते गए हैं, जितने लोग, जैसे हमने बोला 70% लोग पढ़े हैं, बट उस 70% लोगों को भी जो काम करना है वो काम नहीं मिल पाता है। जो एग्जिस्टिंग वर्क रेट है यानी वेज रेट, अगर अभी सैलरी 10,000 चल रही है, ओके मैं 10,000 में काम करने रेडी हूँ, मैं कैपेबल हूँ वो काम करने के लिए, फिर भी अगर मुझे वो जॉब ना मिले तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। इंडिया का सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ही वर्स्ट तरीके से देखा जा रहा है। इवन पॉवर्टी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही देखने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही। सो ये टॉपिक भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर इकोनॉमिक्स के अंदर काम कर रहा है। तो जितने लोग चाहते हैं पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर उनको उस हिसाब से जॉब ना मिल पाता और उनको उसके वजह से क्या फेस आउट करना पड़ेगा, अगर हमें पैसे नहीं मिलेगा तो हम हमारा बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, फैमिली की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप आपकी बेसिक नीड और फैमिली की नीड्स फुलफिल ना कर पाओ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉवर्टी की ओर बढ़ रहे हो। तो बेसिक नीड्स ना जो पूरा कर पाता हो वो भी पॉवर्टी की ओर हो जाता है। उसका बेसिक मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में हम अनएम्प्लॉयमेंट को मान सकते हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, जितना सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ था, उतना 1991 के बाद कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी का जनरेशन देखा नहीं गया। ठीक है, ये एक वाइड रीजन इंडिकेटर्स में देखा गया। सो दिस वर द लेवल ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। वी कैन से दैट इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी को मेजर करने के लिए इस इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फैक्टर्स और द इंडिकेटर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। सो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप you all have understood this portion in a very well manner. This video was an interesting video for you. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.